السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ میئر کے عہدے کا کون ہوگا دعوے دار؟ میجک فگر نہیں بلکہ کورم کی اہمیت۔ ٹی آر ایس عہدے سے دور رہنے کا تاثر پیش کر رہی ہے، سیاسی حلقوں میں نئی بحث۔ دیہی روزگار ضمانت اسکیم کے بقایا جات فوراً جاری کریں، صرف ایوارڈ دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مرکزی وزیر کو ای دیاکر راؤ کا مکتوب۔ بلدیہ کی آمدنی میں بتدریج کمی، دسمبر سے اب تک 9 کروڑ 30 لاکھ روپے وصول۔ کورونا اور سیلاب کی وجہ سے آمدنی متاثر ہونے کا عہدیداروں کا دعویٰ۔ اور شمس آباد پر دلخراش سڑک حادثہ، تیز رفتار کار نے مزدور کو رون ڈالا۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز لے کر آئے ہیں 3 BHK اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائشی فلیٹس، جسے بنائے ہم نے اور بسائیں گے آپ۔ ریتی باولی پلر نمبر 56 آصف نگر مہدی پٹنم روڈ اور آرام گڑھ ایکس روڈ پلر نمبر 307۔ لگژری ایمینٹیز جیسے سوئمنگ پول اور چلڈرنز پلے ایریا کی سہولیات سے آراستہ۔ ہمارے یہاں کمرشل شاپس بھی موجود ہیں، مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی چوراہے پر۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کڈنی اور گال بلیڈر کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری، R&S یونانی فارمیسی کڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ۔ اب UNI سٹون کیپسولز کے ذریعے خاتمہ کیجیے۔ نو آپریشن، نو سائیڈ ایفیکٹس، 100% ریزلٹ۔ صرف UNI سٹون کیپسول سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی رعایت۔ پھر سے پتھری نہ ہونے کا مکمل علاج۔ R&S یونانی فارمیسی، فرسٹ فلور، سینڈیکیٹ بینک، بہادرپورہ ایکس روڈ، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 9703939436۔ سرخی آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے میئر کو لے کر تجسس برقرار ہے۔ سیاسی حلقوں میں مختلف قیاس آرائیاں چل رہی ہیں۔ ٹی آر ایس یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ میئر کے عہدے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ میئر کے انتخاب کو لے کر میجک فگر نہیں بلکہ کورم کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس کو لے کر پارٹیاں اپنی اپنی حکمت عملی میں مصروف ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں شہر کے عوام نے ایک معلق ایوان کے حق میں فیصلہ دیا۔ کوئی بھی پارٹی اپنے بلبوتے پر میئر کا عہدہ حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ ان حالات میں یہ تجسس بڑھتا جا رہا ہے کہ میئر کس پارٹی کا ہوگا۔ نو منتخب اس بلدی کارپوریشن کے میئر کا عہدہ خاتون کے لیے محفوظ ہے، جن کا انتخاب 21 فروری تک کرنا ہوگا۔ ٹی آر ایس کو سب سے بڑی پارٹی کا موقف حاصل ہوا ہے۔ میئر کا انتخاب منتخب ارکان کے علاوہ ایکس افیشو ارکان کے ذریعے ہوتا ہے۔ ٹی آر ایس پارٹی نے میئر کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے نئی حکمت عملی اختیار کی ہے۔ پارٹی نے بظاہر اس عہدے کے حصول کے لیے کوئی سرگرمی نہیں دکھائی ہے۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پارٹی کو اب اس عہدے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر ٹی آر ایس مقابلے سے دور ہو تو کیا میئر کسی دوسرے دعوے دار کا انتخاب ہو سکتا ہے؟ ایسا بھی نہیں، اس لیے کہ یہاں سب سے بڑا سوال ایوان کے کورم کی تکمیل اور حاضر ہونے والے ارکان کا ہے۔ مجلس و بی جے پی اپنی دعوے داری کرتے ہیں تو ایسی صورت میں واحد بڑی جماعت کی حیثیت سے ٹی آر ایس میئر کی کرسی تک پہنچنے اپنا راستہ بنا لے گی۔ بی جے پی اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ کیا مجلس ٹی آر ایس کی تائید کرے گی، جبکہ ٹی آر ایس مجلس دونوں نے اس انتخابات میں ایک دوسرے کے خلاف مقابلہ کیا تھا۔ میئر کے انتخاب میں صرف 2 جماعتوں نے مقابلے میں حصہ لیا اور ایک پارٹی کے واک آؤٹ کرنے پر کورم مکمل نہیں ہوگا۔ سرکاری طور پر عظیم تر بلدی ایکس افیشو ارکان کی تعداد 41 ہے، جس کو ملا کر ایوان کی تعداد 191 ہے، جبکہ سیاسی جماعتیں اپنے طور پر ایکس افیشو کی تعداد بتا رہی ہیں، جس میں ٹی آر ایس کے جملہ ارکان 84
और मजलिस के 54, बीजेपी के 51 अरकान हैं। कोई भी पार्टी तनहा मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। बीजेपी मजलिस और टीआरएस की दोस्ती को साबित करने की कोशिश में है ताकि मजलिस और टीआरएस को बदनाम किया जा सके। मेयर के ओहदे के लिए हर पार्टी अपने तौर पर जाल बिछा रही है। अब देखना है कि कौन किसके जाल में फंसता है। वजीर पंचायत ई दयाकर राव ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि देही रोजगार जमानत स्कीम की बकायाजात की अदायगी फौरन जारी की जाए। इस सिलसिले में मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर को मकतूब रवाना करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना देही रोजगार जमानत स्कीम की अमलावरी में सरफहरिस्त है। इन्होंने कहा है कि रियासत को दिए जाने वाले अवार्ड के साथ बकायाजात को फौरी जारी करें। इन्होंने कहा कि रियासत के 32 अजला के 540 मंडल में 12,770 मंडल में देही रोजगार जमानत स्कीम पर अमलावरी की जा रही है। इन्होंने कहा कि इस साल रियासत को इस स्कीम के तहत 1,719 करोड़ रुपए आने थे, जिसमें से सिर्फ 694 करोड़ रुपए ही जारी किए गए। बाकी 1,024 करोड़ रुपए को फौरन जारी करने की इन्होंने दरख्वास्त की। इन्होंने कहा है कि रकम जारी न करने से अब तक जो काम मजदूरों ने मुकम्मल किया है, इनको रकम अदायगी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इन्होंने कहा कि फौरन रकम जारी की जाए। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने बंदरों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बाज़ाबातकारी कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। गंडी रामन्ना हरितावनम में मुल्क का दूसरा बंदरों की बाज़ाबातकारी कैंप का इफ्तिताह किया गया। 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से ये कैंप कायम किया गया है। वजीर मौसूफ ने बताया कि आधे एकड़ पर 8 लाख रुपए से हिरन का पार्क कायम किया गया है। इसके अलावा 2 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से हरितावनम पार्क में तरक्याती काम किए जाएंगे। इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि माहौलियाती तवाज़ुन इंसानी जिंदगी के बका के लिए जरूरी है। इसके लिए हर एक को इसका ख्याल रखना जरूरी है। माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी जरूरी है। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में महकमे जंगलात के ओहदेदारों के अलावा दीगर मौजूद थे। मंदिर की सियासत भारतीय जनता पार्टी को रास आ गई। मंदिर के नाम पर मरकज में इख्तिदार हासिल करने की इस पार्टी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में अवामी मसाइल के बजाय एक गैर मजाज मंदिर को मौजू बनाया। मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह के बीजेपी के गली लीडर्स इस मंदिर के मौजू को आजमाते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। मुल्क के सेकुलर दस्तूर की धज्जियां उड़ाने वाली बीजेपी ने गुज़िश्ता दिनों जीएचएमसी के 9 मुंतखब अरकान को इस मंदिर के रूबरू एक अलामती हलफ दिलाया। शहर में बारिश के मुतासरीन के लिए इमदाद की अर्जियों को मुतल्लिका हुक्काम तक पहुंचाने के बजाय इसे इस मंदिर के हवाले किया। एक तरफ एक गैर मजाज मंदिर का मौजू बनाने वाली बीजेपी कायदीन अपने सियासत चला रही हैं। इससे सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़े उप्पुगुड़ा में मंदिर की एक वसी अराजी पर बीजेपी का एक कायद नाजायज तौर पर काबिज है। इस इलाके के मकीन इस वसी अराजी पर डबल बेडरूम मकानात तामीर करके देने का हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। चंद सियासी कायदीन बीजेपी के कायदीन को चैलेंज कर रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने एक मंदिर पर अपने अरकान को हलफ दिलाया, उप्पुगुड़ा मंदिर के अराजी से मुताल्लिक भी वो हलफ उठाएं कि इस पर नाजायज कब्जा नहीं हुआ। हलफ लेने के लिए दस्तूरी इदारों और ऐवान के बजाय क्या मुंतखब नुमाइंदे मंदिरों का रुख करेंगे? मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन एक दूसरे के खिलाफ मंदिर आकर कसम खाने का चैलेंज दे रहे हैं। अगर ये रविश जारी रही तो मुल्क के दस्तूरी इदारों पर से अवाम का एतमाद उठ जाएगा। अजीमतर बलदिया हैदराबाद की आमदनी में बतदरीज कमी वाक़ हो रही है। 2 दिन कबल ही स्टैंडिंग कमेटी में साल 2021-22 के लिए 5,600 करोड़ के मुसव्वदे बजट को मंजूरी दी गई है। इस साल की आमदनी में कमी देखी गई। अप्रैल के महीने में 580 करोड़ की आमदनी हुई थी, जबकि नवंबर के महीने में 42 करोड़ रुपए की आमदनी हुई।
दिसंबर के निस्फ माह से अब तक सिर्फ 9 करोड़ 30 लाख रुपए की आमदनी हुई है। इस साल प्रॉपर्टी टैक्स से अब तक 1189 करोड़ रुपए ही हासिल हुए, गुज़िश्ता साल के मुकाबले कम वसूल हुए हैं। आइंदा मालियाती साल में प्रॉपर्टी टैक्स से 1850 करोड़ रुपए का निशाना रखा गया है। बलदिया के ओहदेदार का कहना है कि कोरोना वायरस और सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र आमदनी पर असर पड़ा है। इसके बाद धरनी पोर्टल के सर्वे के काम से भी टैक्स कलेक्टर मसरूफ थे। उनका कहना था कि अवाम को सिंगल सेटलमेंट की आदत हो गई है, इसलिए भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूल नहीं हो रहे। बहरहाल आइंदा मालियाती साल के मुसव्वदे बजट में 1224 करोड़ कर्ज हासिल करने का मंसूबा है। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि GHMC का खजाना खाली हो चुका है, तनख्वाहों की अदायगी भी मुश्किल हो रही है। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मसौदा बजट हकीकी है या फिर सिर्फ एदाद व शुमार का खेल है, आइंदा फरवरी में तश्कील पाने वाले नई बलदिया के लिए एक चैलेंज से कम नहीं। रियासत तेलंगाना में इतवार को कोविड के केसेस में मामूली कमी हुई। इतवार की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए एदाद शुमार के मुताबिक 592 नए केसेस और 3 अमवात की तस्दीक हुई है। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1513 हो गई हैं। मजमूई केसेस की तादाद 2,81,414 है। एक्टिव केसेस 6,888 बताए गए। जिलेवारी सतह पर अगर देखा जाए तो हैदराबाद में 119, करीमनगर में 26, मलकाजगिरी में 17, रंगारेड्डी में 57, पेद्दापल्ली में 18, सिद्दीपेट में 21, वरंगल अर्बन में 29, वरंगल रूरल में 11, भोंगीर में 9, संगारेड्डी में 11, नलगुंडा में 18, महबूब नगर में 10, खम्मम में 20 जबकि 15 अजला में 10 से कम केसेस दर्ज हुए हैं। अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। Contact 9703939 2 साल कबल काम के दौरान शौक लगने से फौत हो जाने वाले मोहम्मद अफसर के अफराद खानदान को मजलिस की इत्तेहाद यूनियन की कोशिशों व नुमाइंदगियों के जरिए 10 लाख रुपयों की रकमी इमदाद महकमे बरक़ी से मंजूर करवाई गई, जिसे दारुस्सलाम में मरहूम की बेवा के हवाले किया गया। मरहूम अफसर महकमे बरक़ी में मुलाजिमत करते थे और दिसंबर 2018 में राजेंद्र नगर में काम के दौरान बरक़ी शौक लगने की वजह से वो फौत हो गए थे। मरहूम के अफराद खानदान ने मजलिस की नुमाइंदगी पर इजहार तशक्कुर किया है। का चेक दिलाया गया मोहम्मद अफसर के बेवा को, जो 5-6 महीने कबल जो है ना उनका शॉक लगने की वजह से इंतकाल हो गया था राजेंद्र नगर के इलाके में। तो जमात की नुमाइंदगी पे सदर साहब की निगरानी में और हमारे पाशा खदरी साहब की निगरानी में जो है ना आज उनके घर वालों के हवाले किया गया चेक। और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम जमात का, जो हमारे साथ में ठहर के इत्तेहाद यूनियन के साथ में ठहर के इनके पास जो है ना इनके साथ इंसाफ दिलाया।
जहानुमा के बॉयज टाउन स्कूल में हुकूमत की जानिब से ईसाई बरादरी में क्रिसमस तोहफे तकसीम किए गए। इस मौके पर मुकामी नौमुंतखब रुकन बलदिया मुक्तदर बाबा के हाथों ईसाई बरादरी के अफराद में क्रिसमस के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। मुक्तदर बाबा के मीडिया को बताया कि हुकूमत ने मजलिस की नुमाइंदगी की वजह से रमज़ानुल मुबारक और क्रिसमस के लिए मज़कूरा तोहफ़ों को तकसीम करने का फ़ैसला लिया है। इन्होंने मज़ीद बताया कि सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी दलितों और अक़लियतों के लिए काफ़ी जद्दोजहद करते हुए उनके लिए मुख्तलिफ स्कीमों को मुतारुफ करवा रहे हैं। मुक्तदर बाबा ने बॉयज टाउन स्कूल के मसाइल की यकसुई का भी तयक़ुन दिया है। ख़वातीन इस्लाम के ख़ुतबात पर मुश्तमिल किताब का सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने रस्म इजरा अंजाम दिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल मुगलपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर आसिम रेशमा ने इसको तहरीर किया है। इस मुनफरिद किताब में ख़वातीन के ख़िताबात और उनकी अहमियत को वाज़ेह किया गया। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी, डॉक्टर साबिर पाशा, मुफ्ती SM सिराजुद्दीन क़ादरी, सैयद फ़हीम आरिफ और दूसरे मौजूद थे। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने इस किताब की इजराई पर खुशनुदी जाहिर की और मुसन्निफा को मुबारकबाद पेश की। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए राह निजात हासिल की जा सकती है। उर्दू घर मुगलपुरा में मुनक्किदा जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए मुख्तलिफ उलमाए कराम और दानिश्वरों ने सीरत के कई पहलुओं पर रोशनी डाली। शोअराए कराम ने मंजूम नजराना अक़ीदत पेश करते हुए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को उजागर किया। इस्लामिक सेंटर जलालबाग संगारेड्डी में रिफाह चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का लॉन्चिंग प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मईशियत को मुस्तहकम करने के मौसर ज़राए के उन्वान पर बात की गई। तौफीक असलम खान इंजीनियर ने मज़कूरा उन्वान पर तफसीली रोशनी डालते हुए ताजरीन को तरक्की की राह पर कामज़न करने के लिए ज़रूरी मालूमात से वाकिफ़ करवाया। प्रोग्राम में बहैसियत एजाज़ी मेहमान शिरकत करने वाले तंजीम के कन्वीनर ने रिफा तंजीम के अगराज़ व मकासद के बारे में बताया। रिफा तंजीम ताजरीन की एक तंजीम है जो मुल्क के 17 रियासतों में ताजिरों की बेहतरीन नुमाइंदगी करती है, रहनुमाई करती है। इन्होंने कहा है कि तालीमी याफ्ता बेरोजगार नौजवान सनतें कायम करने के लिए 90% हुकूमत की स्कीमात से इस्तेफादा करते हुए खुद को और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत कर सकते हैं। वो इस सिलसिले में रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से राबिता कर सकते हैं। शमशाबाद रोड पर एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने सड़क पार करने वाले एक मजदूर को रौंद डाला और राह फरार इख्तियार कर ली। इस मजदूर की शिनाख्त किरण कुमार की हैसियत से की गई, जिसकी बरसरे मौका हलाकत वाक़ हो गई। पुलिस CCTV कैमरे के जरिए इस कार को तलाश कर रही है। ये कार आउटर रिंग रोड से बेंगलुरु शाहरा की सिमत इंतहाई तेज रफ्तारी से जा रही थी। इस शाहरा पर आए दिन कई हादसात रूनुमा हो रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436।
मेयर के ओहदे का कौन होगा दावेदार, मैजिक फिगर नहीं बल्कि कोरम की अहमियत। टीआरएस ओहदे से दूर रहने का तासुर पेश कर रही है, सियासी हलकों में नई बहस। देही रोजगार जमानत स्कीम के बकायाजात फौरन जारी करें, सिर्फ अवार्ड देने से कुछ नहीं होगा। मरकजी वजीर को ई दयाकर राव का मकतूब। बलदिया की आमदनी में बतदरीज कमी, दिसंबर से अब तक 9 करोड़ 30 लाख रुपए वसूल। कोरोना और सैलाब की वजह से आमदनी मुतासिर होने का ओहदेदारों का दावा। और शमशाबाद पर दिलकरार सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने मजदूर को रौंद डाला। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।